हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ काइट मेकर बाय रुस्किन बॉन्ड के लॉन्ग आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन: कंसीडर योरसेल्फ प्रेजेंट एट द रिवर साइड व्हेन द नवाब केम टू टेक पार्ट इन काइट फ्लाइंग। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द मैडन इन योर ओन लैंग्वेज। जब नवाब साहब पतंगबाजी में भाग लेने आए उस समय अपने आप को नदी किनारे उपस्थित समझते हुए मैदान के दृश्य का वर्णन अपनी भाषा में करिए। आंसर: इट इज ए वेरी वास्ट मैडन कवर्ड विद ग्रीन ग्रास। द मैडन स्टार्ट फ्रॉम द walls ऑफ द ओल्ड फोर्ट एंड स्ट्रेचेस टू द बैंक ऑफ द रिवर. There are people here and there. The children are shouting and running. There are kites flying in the sky. Among shouting young men there is middle-aged Mahmood with a big kite in the shape of a dragon. The crowd suddenly gives a joyous shout. The Nawab has arrived with his servants. Mahmood presents him his dragon kite. The Nawab appreciates it with a smile. Mahmood tries to fly it, but what he fails. Then a sudden gust of wind lifts the heavy kite into the sky. The young son of Mahmood quickly hold the reel and help their father in controlling the flight of the dragon kite. Suddenly the string breaks and the big kite flies away towards the sun and slowly disappears in the vast sky. हरी घास से ढका हुआ यह एक बहुत बड़ा मैदान है। यह मैदान पुराने किले की दीवारों से शुरू होकर नदी के किनारे तक फैला हुआ है। इधर उधर आदमी जमा हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं व भाग रहे हैं। आकाश में पतंगें उड़ रही हैं। शोर मचाते हुए 9 युवकों के बीच में अधेड़ उम्र का महमूद है जो एक अजगर की शक्ल की विशाल पतंग लिए हुए है। एकाएक भीड़ में खुशी की आवाज़ें जोर से उठीं। नवाब साहब अपने नौकरों के साथ आ गए। महमूद उन्हें अपने अजगर पतंग भेंट करता है। नवाब साहब उसकी तारीफ में मुस्कुरा देते हैं। महमूद उसे उड़ाने की कोशिश करता है किंतु वह असफल रह जाता है। फिर अचानक हवा का एक झोंका उस भारी पतंग को आकाश तक ऊंचा उठा देता है। महमूद के युवा पुत्र जल्दी से हुक्का थाम लेते हैं तथा अजगर पतंग को संभालने में अपने पिता की सहायता करते हैं। एकाएक डोर टूट जाती है और विशाल पतंग सूर्य की ओर उड़ती है और धीरे धीरे अनंत आकाश में गायब हो जाती है। क्वेश्चन: व्हाट डिफरेंस डज द राइटर रुस्किन बॉन्ड डिस्क्राइब बिटवीन द डेज व्हेन महमूद वाज यंग एंड नाउ व्हेन ही ग्रू ओल्ड। जब महमूद युवा था और अब जब वह वृद्ध हो गया है तो इन दिनों के कौन कौन से अंतरों का लेखक वर्णन करता है। इम्पॉर्टेंट है। और गिव एन अकाउंट ऑफ द चेंज दैट टुक प्लेस इन द पैटर्न ऑफ लाइफ एज इट वाज व्हेन महमूद वाज यंग एंड एज इट वाज व्हेन ही बिकेम ओल्ड। जब महमूद युवा था और जब वह वृद्ध हो गया है तो जीवन पद्धति में जो परिवर्तन हुए उनका वर्णन कीजिए। When Mahmood was young, people had time for kites and daydreams. As a young man, Mahmood made good and special kites. He was an expert also in flying the kites. In his old age, people stopped flying kites, therefore his business flopped. His shop was sold and he became poor. People who once cared for him now neglected him. People once used to gather in a big crowd on the vast meadow for flying kites. Mahmood would also fly his special kites before the public and in the presence of his patron Nawab. When Mahmood was young, it was a leisurely time. Life became very busy in the old age of the kite maker. The adults were struggling for money. They had no time and money for flying kites. The children were more interested in cinema films than in the kites. When Mahmood was young, the people used to care for their neighbors. When he was old, they stopped that practice. Nobody now cared about the neighbors. The old people were dying. The vast meadow was also no more. The family members of the Nawab had also become quite poor. There was no fellow feeling left among the people. They did not sit under the banyan tree to discuss their
problems and the plans. These are the changes that took place in the pattern of life as it had been when Mahmud was young and as it was when he became old. जब महमूद युवा था तब लोगों के पास पतंगों और दिन में सपने देखने के लिए समय था। एक युवक के रूप में महमूद बढ़िया व ख़ास किस्म की पतंगें बनाता था। वह पतंगें उड़ाने में भी कुशल था। उसकी वृद्धावस्था में लोगों ने पतंग उड़ाना ख़त्म कर दिया था, इसलिए उसका व्यापार समाप्त हो गया। उसकी दुकान बिक गई और वह गरीब बन गया। वे लोग जो कभी उसकी कद्र करते थे अब उसकी अपेक्षा करते थे। पहले एक बड़ी भीड़ के रूप में लोग उस बड़े मैदान में पतंगें उड़ाने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। उस जनता के सामने तथा अपने संरक्षक नवाब साहब की उपस्थिति में महमूद भी अपनी खास पतंगें उड़ाता था। जब महमूद युवा था तो फुर्सत का ज़माना था। उस पतंग साज के बुढ़ापे में ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई। वयस्क लोग पैसे के लिए संघर्ष करते थे। उनके पास पतंग उड़ाने के लिए समय और पैसे नहीं थे। बच्चे पतंगों से अधिक सिनेमा की फिल्मों में रुचि लेते थे। जब महमूद युवा था तो लोग अपने पड़ोसियों की फ़िक्र किया करते थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उन लोगों ने यह रिवाज समाप्त कर दिया था। पुराने लोग मरते जा रहे थे। वह मैदान भी अब नहीं रहा था। नवाब साहब के वंशज भी बिल्कुल गरीब हो गए थे। लोगों के बीच भाईचारे की भावना नहीं बची थी। वे बरगद के पेड़ के तले अपनी अपनी समस्याओं व योजनाओं पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठते थे। यही वे परिवर्तन हैं जो उस जीवन शैली में हो गए जबकि महमूद जवान था और जबकि वह बूढ़ा हो चुका था। एंटोनिम्स: एंशिएंट का मॉडर्न, लिटिल का मच, नैरो का ब्रॉड, बैक का फ्रंट, वोक का स्लेप्ट, आस्क्ड का आंसर्ड, लर्न का फॉरगेट, न्यू का ओल्ड, स्मॉल का बिग, रेज्ड का लोवर्ड, लॉस का फाइंड, सोल्ड का बॉट, एगो का अहेड, डिस्डेन का लाइक, स्पेंड का अर्न, ओपन का शट, रिमेम्बर्ड का फॉरगॉट, ग्रेट का ऑर्डिनरी, अननोन का नॉन, आइडियल का बिजी, डेलिकेट का स्ट्रॉन्ग। सिनोनिम्स: एलोबरेट का डिटेल होगा, सरपेंट का स्नैक, असेंबल का गैदर, फियर्सली का टेरिबली, फ्री का इंडिपेंडेंट, विविड का एलेबोरेट, सिक का इल, ग्लैडेंड का प्लीज्ड, पार्टीशन का सेपरेशन, स्ट्रगल का फाइट, इंडिफरेंस का केयरलेसनेस, शेल्टर का रिफ्यूज, एफिनिटी का सिमिलैरिटी, रेस्प्लेंडेंट का ब्राइट, एक्वायर का गेट, फेंट का वीक। डाइड मीन्स होता है रंग दिया, DYED रंग लिया। इसका यूज करना है द Snices wear their garments dyed in saffron color. नेक्स्ट है DIED, डाइड मीन्स मरा हुआ, मर गया। अब्दुल हमीद डाइड फाइटिंग ब्रेवली इन द बैटल फील्ड। TAIL, टेल मीन्स पूछ, इसका यूज करना है। TALE, टेल मीन्स कहानी। LOSE, लूज मीन्स खो देना। LOOSE, लूज मीन्स ढीला। HOUR, आवर मीन्स घंटा। OUR, आवर मीन्स अपना, हमारा। HEARD, हर्ड मीन्स सुना। HERD, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, रेवड़। NEW, न्यू मीन्स नया। KNW, न्यू मीन्स जानता था। ROOT, रूट मीन्स जड़। ROUT, राउट मीन्स बुरी तरह से हराकर भगा देना। HEAD, हेड मीन्स सिर, प्रधान। HAD, हेड, पास्ट टेंस ऑफ हैव एंड हैज। CAUGST, कॉट मीन्स पकड़ लिया। COT, कॉट मीन्स कॉटेज, झोपड़ी, कुटी। BLUE, ब्लू मीन्स नीला। BLEW, ब्लू मीन्स पास्ट टेंस ऑफ ब्लो। टैक्स का ओपनिंग, कॉस्ट बाई ब्रेकिंग। अबंडेंट का नॉट इन यूज। नॉडिंग का डजिंग। डिस्प्लेड का सोप्ड। चकल्ड का लाउड क्वाइटली। स्किप्ड का बेंट आउट, जंपिंग। लिबरेटेड का फ्रीड। लीजरली का इजी गोइंग। ABANDONED, अबंडन मीन्स छोड़ देना, त्याग देना। बेयर फूट मीन्स नंगे पाँव। CLAD, क्लैडेड मीन्स वस्त्र धारण किए हुए। ड्रीम मीन्स दिन में सपना देखना। TWINE, ट्वेन मीन्स मंजा, धागा। STUCK, स्टक मीन्स फंस गई। लाई इन द सन, ले इन द सन मीन्स धूप में लेट गया।
STRETCHED स्ट्रेच मीन्स खींच कर बड़ा कर दिया। अंग्राइनली इनटू द ब्लू मीन्स आसमान में। अननोन मीन्स अज्ञात। रेटिनी मीन्स सेवकों का दल। इन ए हीट ऑफ होप मीन्स किसी आशा के जोश में। वेयर ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचल दिए गए। अनलाइक मीन्स असमान। प्रोटेस्टिंग मीन्स विरोध करना, शिकायत करते हुए। साउंड मीन्स आवाज़ गहरी। लॉस्ट टू व्यू मीन्स गायब हो गई। इन द नेबरहुड मीन्स पड़ोस में। कम्पिटेटिव मीन्स स्पर्धा वाला। नो लॉन्गर मीन्स और अधिक नहीं। ऑफ कोर्स मीन्स सच में। एफिनिटी मीन्स समानता या संबंध। रेस्प्लेंडेंट मीन्स बहुत चमकीला। ब्रिटल मीन्स कठोर किंतु सरलता से टूट जाने वाला, भंगुर। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। रिस्पॉन्स मीन्स उत्तर, प्रत्युत्तर। गस्ट ऑफ विंड मीन्स हवा का झोंका। ग्रोन अप मीन्स आयु में बढ़े। अ गुड डील ऑफ मीन्स बहुत अधिक। वर्ड वेंट राउंड मीन्स खबर फैल गई। ड्राइंग टू एंड क्लोज मीन्स अंत की ओर बढ़ता हुआ। टेकन फॉर ग्रांटेड मीन्स स्वीकार कर लिया। क्लोज बाय मीन्स निकट। फैंटास्टिक मीन्स अद्भुत। ऑफ नो कंसर्न मीन्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस संबंध नहीं होना, महत्वहीन होना। प्राइम ऑफ वंस लाइफ मीन्स व्यवस्था, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। कम्बरसम मीन्स हैवी एंड ऑकवर्ड, भारी व बेतुका जिसे संभालने और ले जाने में कठिनाई हो। टर्न ऑन वंस हील्स मीन्स एकदम घूम या मुड़ जाना। सीक शेल्टर फ्रॉम मीन्स किसी से बचना। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।